السلام علیکم، میں ہوں سید عقیل، آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربھنی آج تک چلتے ہیں۔ پربھنی ضلع کی سب سے بڑی اور خاص خبر کے لیے خاص خبر یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کی جانب سے پورے پربھنی ضلع میں سدسیہ نوندنی ابھیان شروع کی گئی اور اس میں بھرپور حصہ لینے کے لیے آواہن بھی جمعیت علماء ہند پربھنی شاخہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس وقت پربھنی آج تک کی ٹیم جب جمعیت علماء ہند پربھنی ضلع پربھنی کے آفس میں جب پہنچی تو اس وقت جناب قاری عبدالرشید صاحب، اسی کے ساتھ میں مولانا عیسیٰ قاسمی صاحب، مولانا غلام رسول ویتی صاحب، جناب حافظ سید عیسیٰ صاحب، جناب حافظ عبد المجیب صاحب، جناب حافظ عبد المجید صاحب، جناب حافظ ابراہیم صاحب، جناب حافظ نعیم صاحب، جناب مفتی زبیر صاحب، جناب حافظ قیوم صاحب، جناب مولانا معین قاسمی صاحب، جناب مفتی زبیر صاحب، جناب مفتی رضوان صاحب، جناب مولانا انصار صاحب، ایوب بھائی ملن وانوت، مولانا زبیر پالودی، مولانا جبار پالودی، مولانا عبد القدوس صاحب، اسی کے ساتھ محمود بھائی ایم ٹاور والے، قاری اسماعیل صاحب، اسی کے ساتھ میں معبود خان پٹھان صاحب، پربھنی آج تک کے بیورو چیف سید ایان صاحب، ان تمام حضرات کی اس پروگرام میں موجودگی تھی۔ جس طرح سے یہاں پر آواہن کیا گیا ہے جمعیت علماء ہند کی جانب سے کہ کس طرح سے سدسیہ نوندنی کرنا ضروری ہے اور تمام لوگوں کو، مسلم بھائیوں نے جمعیت علماء ہند سے جڑنا چاہیے اور قوم اور ملت کی خدمت کرنی چاہیے۔ اسی کے چلتے آواہن کیا گیا ہے جمعیت علماء ہند پربھنی شاخہ کی جانب سے کہ سدسیہ نوندنی میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنے آس پڑوس کے اپنے دوست احباب کو بھی اس سدسیہ نوندنی سے جوڑیں اور تمام محلے کے تمام لوگوں سے اس سدسیہ نوندنی سے جوڑیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا تفصیلی جواب ہمارے قاری عبدالرشید صاحب حمیدی جو ضلع صدر جمعیت علماء پربھنی کے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ مراٹھواڑہ جمعیت علماء کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، وہ اس مہم کا کیا مقصد ہے اور نوجوانوں کو اس سے کیا پیغام دینا ہے وہ دیں گے۔ لیکن میں یہاں پر صرف ایک بات یہ کہوں گا کہ قاری عبدالرشید صاحب حمیدی جب سے جمعیت علماء ضلع پربھنی کی صدارت اور کمان سنبھالے ہیں تب سے جمعیت کا پیغام گھر گھر پہنچ گیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ حال دیکھا کہ جمعیت علماء جب یہاں پر قائم ہوئی تھی اس وقت یہاں پر صرف 10,000 ممبر سازی تھی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ الحمدللہ قاری صاحب کی محنت، عہدیداران کی محنت اس کے اندر رہی اور آج الحمدللہ جمعیت علماء ضلع پربھنی کی ممبر سازی کا جو اکڑا ہے وہ 1,40,000 تک پہنچ چکا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ جمعیت کا پیغام جو ہے گھر گھر پہنچ گیا ہے اور میں نے دیکھا کہ جب سے قاری عبدالرشید صاحب ضلع صدر بنے ہیں تب سے پربھنی جمعیت فعال اور متحرک ہو چکی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مہم کو جو ہے کامیاب فرمائے اور جو قاری صاحب اور ان کے ساتھ ساتھی جو کھڑے ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے اس کام کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا جمعیت علماء سدسیہ نوندنی اور اس کا سدسیہ بننے کی فیس کتنی۔ میں آپ کو بتلاؤں، جمعیت علماء ایک سماجی اور قومی خدمت گار تنظیم ہے۔ اس کا لوگوں سے پیسے کمانا مقصد نہیں ہے، سدسیہ نوند کرا کر سدسیہ نوندنی کے نام پر پیسہ جمع کرنا مقصد نہیں ہے۔ جمعیت علماء کا مقصد ہے کہ ہر فرد و بشر جس کے قلب و جگر میں ایمان کی رمق ہے وہ ایماندار ہے، ہر مسلمان مرد و عورت جمعیت علماء کے کاز و مشن سے جڑ جائے۔ الحمدللہ جمعیت علماء ضلع پربھنی کی خدمات ہی آپ لے لیجئے، الحمدللہ جمعیت علماء نے یہاں پر 20 دسمبر 2020 کے اندر جو مسائل پیش آئے، جمعیت علماء شانہ بشانہ ان محروسین کی رہائی کے لیے
کھڑی رہی, میدان عمل میں کھڑی رہی. ایسے ہی پالم کے اندر فسادات ہوئے. جمعیت علماء نے تندہی کے ساتھ وہاں پر باز آباد کاری کا نہ صرف کام کیا, بلکہ جو 27 لوگ قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے تھے ان کی رہائی اور باز آباد کاری کا کام کیا. ایسے ہی جمعیت علماء نے اونڈھا ضلع ہنگولی کے اندر فساد رونما ہوا. یک طرفہ یعنی پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی اور مسلمان نوجوان بچوں کے اوپر ایسا کیس بنایا کہ پولیس اسٹیشن پر حلہ کیلا, جبکہ ایسا نہیں تھا. ہم نے جب سروے کیا, جائزہ لیا, تو اس میں قصوروار اور قاطی ہم کو پولیس نظر آئی. ہم نے اس کیس کی پیروی کی اور چند دنوں کے اندر وہ بچے جن کے اوپر یعنی 153 اور ہاف مرڈر کی کیس ایسی یعنی جلدی جن کی بیل نہ ہو ایسے مقدمات کے اندر پھنسایا گیا. لیکن الحمدللہ جمعیت علماء کی مضبوط پیروی کے چلتے وہ بچے ضمانت پر رہا ہوئے اور وہ مقدمہ آسانی کے ساتھ حل ہوا. ایسے ہی کرندہ کے اندر 2 مرتبہ سیلاب آیا. ہم نے ابتدا میں کچے مکانات تقریباً 25 تعمیر کر کے دیے. ایسے ہی ابھی یعنی گزشتہ 1-1.5 سال پہلے جو یعنی سیلاب آیا, جمعیت علماء ضلع پربھنی نے اپنے یعنی ضلع ہنگولی, بیر, لاتور, دیگر اور ناندیڑ کئی ضلعوں سے امداد حاصل کی. ابتدائی باز آباد کاری کا کام کیا گیا. جمعیت علماء مہاراشٹر کی امداد اور مدد اور نصرت سے وہاں پر 25 پکے مکانات تعمیر کر کے دیے. یہ جمعیت علماء کی مختصر سی خدمات ہے. ایسے ہی جمعیت علماء ضلع پربھنی نے ایک بچہ MBBS کا اپنے گود لیا. الحمدللہ اس کی ابتدائی یعنی جب سے اس نے MBBS میں داخلہ لیا ہم نے مکمل تعلیم تک اپنی بساط بھر اس کی اعانت و امداد کی. آج وہ بچہ MBBS بن کر یعنی قوم اور سماج اور ملت کی احسن طریق پر خدمات انجام دے رہا ہے. ایسے بے شمار بچے ہیں جس کو جمعیت علماء اسکالرشپ دیتی ہے. جمعیت علماء ایک ایسی نمائندہ اور مضبوط مذہبی نمائندہ یعنی تنظیم ہے جو ہر محاذ پر ہر موڑ پر آپ لے لیجئے ہندوستان کی آزادی میں جمعیت علماء کا اہم رول اور کردار ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آج ہندوستان میں جو سیکولرزم ہے, آج ہندوستان میں جو سامانیہ ناگرک کو یعنی اپنے حق ادھیکار کو منانے کا اور مذہبی امور پر آزادانہ عمل کرنے کا جو رائٹ حاصل ہے اس میں جمعیت علماء کا اہم رول اور کردار ہے. بزرگوں, آج جمعیت علماء نے پورے ملک بھر میں سدسیہ نوندنی کا کام شروع کیا ہے, ابتدائی ممبر سازی کا کام شروع کیا ہے اور یہ ابتدائی ممبر سازی کا کام ہر 2-2.5 سال کے بعد ہوتا ہے. ہر نئے سدسوں کو جمعیت علماء سے جوڑا جاتا ہے. ابتدائی ممبر سازی کے ذریعے سے ممبرانوں کو جمعیت علماء سے جوڑا جاتا ہے. میری گزارش و درخواست ہے کہ آپ جمعیت علماء کا ممبر خود بھی بنیں, اپنے دوست احباب کو بنائیں, اپنے گھر کی مستورات کو بنائیں اور اس کی یعنی صرف آپ کے جوڑنے کے لیے آپ کو یہ لگے کہ میں سدسیہ بنا, آپ کو یہ لگے کہ میں ممبر بنا. اس لیے جمعیت علماء کے قائدین, جمعیت علماء کے ذمہ داران, جمعیت علماء کے بزرگان نے صرف اس کی فیس 2 روپیے رکھی ہے. غریب سے غریب, خستہ حال سے خستہ حال اور امیر سے امیر جو بننا چاہے اس کی ابتدائی ممبر سازی کی فیس صرف 2 روپیے. صرف مقصد یہ ہے کہ ہم ایک سکلی سے, مضبوط چین سے, مضبوط زنجیر سے جڑیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو یہ 2 روپیے کے ممبر بن رہے ہیں, ایسی تنظیم سے, ایسی جماعت سے آپ جڑ رہے ہیں جو اللہ والوں کی جماعت ہے, جو بزرگان دین کی جماعت ہے, جس کا کردار ہندوستان کو آزادی دلانے کے اندر اہم رول اور کردار ہے, ہندوستان کی سالمیت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ہے. آج مسلمانوں نے ہند کو ٹارچر کر کے بیجا مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے, الجھایا جا رہا ہے. ہمارے قوم کے نوجوان ایسے جن کا قصور کچھ نہیں ہے وہ دہشت گردی کے الزام میں ماخوذ ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں ان کا قصور کچھ نہیں ہے, صرف قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیشتر مقدمات, سینکڑوں مقدمات کی پیروی
जमीयत उलमा ने तीदा दिलेरी पामर्दी के साथ की है और उनका रिजल्ट आखिर में ये आया कि वो बच्चे जिनको निचली अदालतों ने या तो फांसी की सजाएं दी या उम्र कैद की सजाएं दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे जमीयत उलमा के अकाबिरीन को, जमीयत उलमा के खुद्दाम को अल्लाह जज़ाए खैर दे। उन्होंने पामर्दी के साथ उन बच्चों के मुकद्दमात की पैरवी की और आला अदालतों से वो बच्चे बाइज्जत रिहा हुए। सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे अकाबिरीन को। मैं गुजारिश व दरख्वास्त करूँ, आज हमने वैसे तो ये मुहिम तकरीबन 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है, लेकिन चूंकि मुल्क में आम इंतखाबात का माहौल था, हमने अकाबिरीन से दरख्वास्त की कि आप इसमें इजाफा फरमाएं और उसकी आखिरी तारीख 16 मई थी, लेकिन हमारे अकाबिरीन ने समझा इसको और 16 मई से लेकर अब हमें आखिरी तारीख हमारी सदस्य नोंदनी की 15 अगस्त है। लिहाजा मेरी गुजारिश और दरख्वास्त है ख़ास तौर से नौजवान बच्चों से, नौजवान दोस्त और साथियों से कि बेटा आप बहुत सारे तंजीमों के, बहुत सारे संगठनों के, बहुत सारे मित्र मंडल के आप रुकन बनते हैं, आप बने, आपको इख्तियार है, लेकिन ये अल्लाह वालों की जमात है, ये बुजुर्गों की जमात है। ये 2 रुपये की सनद आप यूँ समझे ये जन्नत की सनद है। मैं बहुत बड़े जुमले बोल रहा हूँ, अल्लाह के हुजूर बड़ी इज्जो नियाज के साथ पेश करूँ कि यकीनन जन्नत की सनद है। बुजुर्गों, अल्लाह वालों से जुड़ने की ज़मानत है, अल्लाह वालों के यानी साए में आने की ज़मानत है। मैं गुजारिश और दरख्वास्त करूँगा हमारे तमाम सदस्य, हमारे तमाम ओहदेदारों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जमीयत उलमा की सदस्य नोंदनी इब्तदाई मिंबर साजी में हिस्सा लें। और हमने आज पूरे ज़िले भर के ज़िम्मेदारों को जोड़ा था। कई दिनों से ये मुहिम चालू है, मुख्तलिफ़ मकामात पर जाकर हमने इस मुहिम को चलाया, लेकिन आज ज़िले ऑफिस पर हमने तमाम ज़िम्मेदारों को, ताल्लुक़ जात को, देहात के ज़िम्मेदारों को जोड़ा था। इसमें बड़ी तादाद यहाँ पर आई और उन्होंने अपने अपने अज़ाइम का इरादा किया। बहुत सारों ने इब्तदाई मिंबर साजी के फॉर्म लेकर गए। मैं एक मरतबा गुजारिश और दरख्वास्त करूँगा कि आप खुद भी मिंबर बने, अपने दोस्त अहबाब को मिंबर बनाएं, अपने घर की मस्तूरात को मिंबर बनाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। और अभी एक मरहला चल रहा है, वो है स्कॉलरशिप का मरहला। जमीयत उलमा वैसे हर मैदान में काम करती है, तालीमी मैदान में भी जमीयत उलमा ने दीनी तालीम के मैदान में दीनी तालीमी बोर्ड बनाया। जहाँ पर मकातिब की अशद तरीन ज़रूरत है वहाँ पर मकातिब कुरानिया का निज़ाम कायम किया जाता है, मजबूत निज़ाम कायम किया जाता है। ऐसे ही जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन के मुतमन्नी हैं, वो बहुत काबिल तरीन हैं, बड़ी अच्छी सलाहियतें हैं, लेकिन उनके पास वो तालीम हासिल करने के असबाब नहीं हैं, ज़राए नहीं हैं। तो जमीयत उलमा ऐसे होनहार तलबा के लिए स्कॉलरशिप जारी करती है। मैं गुजारिश और दरख्वास्त करूँगा, जमीयत उलमा की वेबसाइट पर स्कॉलरशिप के फॉर्म हैं, आप उसे वहाँ से डाउनलोड करें, हमारी खिदमत में आएँ, फॉर्म फिलअप करें, पुर करें। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी तरफ से तायीद करके आपको स्कॉलरशिप पहुँचाने की हत्तल मक़दूर कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। फ़क़त वस्सलाम। अगर आप हमारा नंबर नोट करना चाहते हैं तो नंबर भी नोट कर लें, आपके नीचे दिए हुए इस पर आपको नंबर मिल जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारा मकसद ये है कि जमीयत उलमा इस संगठन से, इस तंजीम से, इस जमात से कौम का हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, बालिग मर्द औरत जमीयत उलमा से वाबस्ता हो जाए और इस सदस्य नोंदनी के ज़रिए से उससे जुड़ जाए। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि जुमा में ऐलान कराते हैं, बाहर पिंडाल डालकर अपने टेबल लगाते हैं और लोगों से ऐलान कराकर दरख्वास्त करते हैं कि आप मिंबर बने। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि हम मोहल्ले में चंद नौजवानों के पास मिंबर साजी के फॉर्म देते हैं और वो घर घर जाकर यानी मिंबर साजी के फॉर्म को पुर करके जमीयत उलमा के ऑफिस में जमा कराते हैं। ये तरीक़ाकार है इसका। सोशल मीडिया के ज़रिए से, अखबारात के ज़रिए से हम इसकी इत्तला आम आवाम तक पहुँचाते हैं। घर घर तक, फ़र्द तक पहुँचने की ये मुहिम है और आपके माध्यम से, आपके तवस्सुस से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि हर फ़र्द जिसके सीने में ईमान है, इस्लाम है और वो बालिग
चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो जमीयत उलमा की इस मुहिम में भरपूर ताउन करें और वो इसका हिस्सा बने और 2 रुपये का मिंबर बनकर ये अल्लाह वालों की जमात से जुड़ जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। पूरे महाराष्ट्र भर में मसाजिद की नोंदनी के लिए एक स्कीम चलाई जा रही है और यहाँ पर जिस तरह से काजी सेवा संघ महाराष्ट्र भर से तमाम उन मसाजिद के लोगों से आह्वान भी करता हुआ नजर आ रहा है जूम मीटिंग के जरिए से। दिन रात में 9:30 बजे से 10:30 बजे तक जूम मीटिंग का आयोजन काजी सेवा संघ की जानिब से किया जाता है, जिसमें जनाब काजी मोहम्मद शफी साहब काजी सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष, इनका मोबाइल नंबर 9011721789, उसी के साथ में डॉक्टर काजी मोहम्मद रियाजुद्दीन फारूकी फुलजरकर काजी सेवा संघ मराठवाड़ा अध्यक्ष, इनका मोबाइल नंबर 7057234736। इस तरह का आह्वान इन्होंने किया है। जिन हजरात ने महाराष्ट्र भर ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के तमाम मुस्लिम लोगों से आह्वान किया जाता है, उम्मत मोहम्मदिया से आह्वान किया जाता है काजी सेवा संघ की जानिब से कि जो लोग काजी सेवा संघ से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग जूम मीटिंग के जरिए से काजी सेवा संघ से जुड़ सकते हैं और जिन हजरात के मोहल्लों में, जिन हजरात के गांव में, जिन हजरात के डिस्ट्रिक्ट प्लेस में, जिन हजरात के तालुका प्लेस में, जिन हजरात के ग्राम पंचायत गांव में और जिन हजरात के मोहल्लों में, अलग अलग एरियो में मसाजिद तामीर की गई है और उन मसाजिद का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है वक्फ बोर्ड में, तो ऐसी सूरत में आप इन दोनों नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और दोनों हजरात जिस तरह से आपकी सेवा के लिए पूरे इंडिया भर में अवेलेबल है, आपको गाइडलाइन करने के लिए, आपको मार्गदर्शन करने के लिए, आपकी इस्लाह करने के लिए, हर मस्जिद का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है और रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स की भी पूर्तता किस तरह से की जाएगी, काजी सेवा संघ की जानिब से इस तरह की मालूमात ये तमाम लोग देने वाले हैं। आप तमाम हजरात जो लोग न्यूज़ देख रहे हैं, तमाम लोगों से, तमाम आवाम से गुजारिश है कि अगर आप हमारी परभनी आज तक न्यूज़ देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में अगर आपके मोहल्ले में मस्जिद है और मोहल्ले की मस्जिद की कमेटी ने अगर अपने मस्जिद का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वक्फ बोर्ड में, तो ऐसी सूरत में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, मालूमात लेने के लिए हर दिन रात के 9:30 बजे जूम मीटिंग से, काजी सेवा संघ के जूम मीटिंग से जुड़िए और जुड़ने के बाद में वहां से मालूमात फराहम कीजिए। स्क्रीन पर 2 लोगों के नंबर दिए गए हैं, काजी मोहम्मद शफी साहब जो काजी सेवा संघ के महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष है और उसी के साथ में डॉक्टर काजी मोहम्मद रियाजुद्दीन फारूकी फुलजरकर साहब, इनका भी मोबाइल नंबर दिया गया है, दोनों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फेरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज हम परभनी शहर के इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, ये 2 प्लॉटिंग पे आए हुए हैं जो मेराज भाई इनका है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये परभनी शहर के धार रोड पर हमें मौजूद है और परभनी शहर के धार रोड से जो इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जो रास्ता स्पेशली बनाया गया है, ये सर्विस दी गई। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी गई है वो इस प्रकार की है कि धार रोड से आते हुए आप सीधा इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए डायरेक्ट ये जो रास्ता है, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जा रहा है। इस रास्ते को इस तरह से बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से और ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए दी गई है जो लोग इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में अपने प्लॉट खरीद रहे हैं। NA44 के प्लॉट्स यहाँ पर जो अवेलेबल है, इस इफ्तिखार पार्क में जो प्लॉट यहाँ पर निकाले गए हैं, 71 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये रखी गई है। उसी के लिए यह रास्ता बनाया जा रहा है जो इफ्तिखार पार्क में जो लोग जाने वाले हैं, इस रास्ते से
आप धार रोड पर आने के बाद में धार रोड से आसानी से आप इफ्तिखार पार्क में आ सकते हैं। आपकी सर्विस के लिए, आपकी सेवा के लिए ये रास्ता जिसका काम शुरू है, आप ये पीछे देख सकते हैं मेरे कि किस तरह से इस रास्ते का काम शुरू है। ये वो रास्ता है जो धार रोड को अटैच हो रहा है। आप देख लीजिए मेरे पीछे के साइड में जो रास्ता बन रहा है, इस रास्ते का भी काम यहाँ पर शुरू है, इसका मेंटेनेंस यहाँ पर शुरू किया गया है। ये देख लीजिए जो धार रोड को अटैच हो रहा है, ये वही रास्ता है हम आपको बता रहे हैं जिसका काम यहाँ पर शुरू है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हकीकत में इफ्तिखार पार्क से, इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ जो इफ्तिखार पार्क में जो रास्ता आ रहा है, ये रास्ता जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से होता हुआ जो धार रोड को जा रहा है, ये धार रोड को किस तरह से रास्ता जा रहा है ये बताना चाह रहे हैं हम कि ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता है जो धार रोड को मिलाया गया है। आप अगर धार रोड पर आ रहे हैं तो धार रोड से किस तरह से आप आ रहे हैं ये नज़ारा हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं कि इसी तरह से यही क्वालिटी यहाँ पर रास्ते की दी गई है। एक ज़माना था जो परभनी शहर में, परभनी शहर के जो रास्ते थे, आज से लगभग 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 40 साल पहले रास्तों के जो काम हुआ करते थे, वो रास्तों के काम इस तरह से ऐसे सलिए इस्तेमाल किए जाते थे और ऐसे मजबूत सलिए इस्तेमाल करके, इस क्वालिटी के सलिए इस्तेमाल करके रास्तों के काम बनाए जाते थे, रास्तों की नालियां बनाई जाती थी और रास्तों के ऊपर के ढापे बनाए जाते थे। वही क्वालिटी यहाँ पर मेराज भाई के स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, यहाँ पर ये रास्ते बनाए जा रहे हैं और रास्तों के अलावा जो नालियां बनाई जा रही हैं, पूरी तरह से आने वाले 25 से 30 साल तक ये टिकी रहे, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये के हिसाब से रखी गई है। एक ही साइज़ के एक तरह के 71 प्लॉट है 115 प्लॉट में से, और बाकी के जो प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। ये सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। एनए लेआउट प्लॉटिंग है। यहाँ पर पोल, इलेक्ट्रिकल पोल का इंतज़ाम किया गया है। खूबी नल के पानी का इंतज़ाम यहाँ पर इफ्तिखार पार्क में किया गया है। जिस तरह से इफ्तिखार कॉलोनी में किया गया था, उसी तरह से इफ्तिखार पार्क में भी नल का इंतज़ाम किया गया है। हर घर के सामने, हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं और उसी के साथ में इलेक्ट्रिकल पोल लगाए गए हैं। साथ में नालियां भी यहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट में बनाकर दी जा रही हैं। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट का रास्ते भी पूरी तरह से बनाकर दिए जा रहे हैं। ख़ास तौर से इफ्तिखार पार्क यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से जो शुरू हो रहा है, इसकी जो सर्विस दी जा रही है कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से, स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये सर्विस ही इस तरह की दी जा रही है। हमारे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता बखूबी इस तरह का है कि आने वाले कम से कम 25 से 30 साल तक ये रास्ता ख़राब नहीं होगा। इस तरह की सर्विस इस रास्ते की दी जा रही है। दोनों साइड से नालियां हैं, दोनों साइड से नालियों के अलावा यहाँ पर झाड़ लगे हुए। ये जो झाड़ है, ये झाड़ आप देख लीजिए कि इस झाड़ का साइज़ और ये झाड़ की क्वालिटी, ये परभनी शहर में नए झाड़ है, नए क्वालिटी के है और अपने आप में एक मिसाल ये झाड़ है। ये झाड़ इस तरह के हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए हुए हैं। पूरी तरह से सीमेंट और कंक्रीट में नाली बनाई हुई है और साथ ही नाली के अलावा ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने वाला है। और सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने के बाद में ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू होने के बाद में मुकम्मल धार रोड तक पूरी तरह से ये रास्ता जा रहा है। इफ्तिखार कॉलोनी है और इफ्तिखार कॉलोनी NA लेआउट, NA 44 लेआउट है। 134 प्लॉट्स जो अवेलेबल थे के बाद में इनका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है इफ्तिखार पार्क। इफ्तिखार पार्क का ये जो रास्ता है, मैं जिस रास्ते पर खड़ा हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ ये धार रोड को अटैच हो रहा है। और धार रोड को ये नज़ारा हम स्पेशली आपको इसके लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर 115 प्लॉट से 115 प्लॉट में से 71 प्लॉट 22/40 के हैं। ऐसे 71 प्लॉट है और बाकी के जो प्लॉट्स है उनकी कीमत अलग अलग रखी गई है। जो कॉर्नर्स के प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।
महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।